Hello everyone, welcome to Wings of Fire Academy, a place for free education. My name is Grace and today we are going to study class 7th English Bal Bharati, unit number 4, lesson number 6, Papa Pano's Special Christmas. Now Papa Pano's Special Christmas is a short children's story written by Leo Tolstoy. This is an interesting story to introduce young children to the value of kindness. So let's start for today's lecture. First of all, we are going to read the passage. It was Christmas Eve, and although it was still afternoon, lights had begun to appear in the shops and houses of the little Russian village. For the short winter day was nearly over. Excited children scurried indoors, and now only muffled sounds of chatter and laughter escaped from closed shutters. Old Papa Pano, the village shoemaker, stepped outside his shop to take one last look around. The sounds of happiness, the bright lights, and the faint but delicious smells of Christmas cooking reminded him of past Christmas times, when his wife had still been alive and his own children little. Now they had gone. Let's see the first line. It was Christmas Eve. ये क्रिसमस की पूर्व संध्या थी. And although it was still afternoon, lights had begun to appear in the shops and houses of the little Russian village. हालांकि क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, राइट, लेकिन अभी भी दोपहर ही थी, राइट, पूरी तरीके से इवनिंग टाइम नहीं था. और छोटे रूसी गांव की जो दुकानें हैं और घर जो है उनमें रोशनी दिखाई देना शुरू हो गया था. हालांकि हम जो लाइट्स ऑन करते हैं, राइट, हम सड़क पे भी लाइट्स देखते हैं तो वो इवनिंग टाइम में जब अंधेरा होने लगता है तब हम देखते हैं. लेकिन इस दिन मतलब कि क्रिसमस की ये पूर्व संध्या थी, इवनिंग टाइम होने वाला था, लेकिन अभी भी आफ्टरनून ही था. मतलब वहां पे उजियाला था, फिर भी घरों में और दुकानों में रोशनी दिखाई देना शुरू हो गया था. For the short winter day was nearly over. और जो सर्दियों के दिन थे वो लगभग खत्म हो चुके थे. Excited children scurried indoors, and now only muffled sounds of chatter and laughter escaped from closed shutters. Now बच्चे क्रिसमस के कारण, राइट, क्रिसमस दिन के कारण हॉलीडेज होते हैं तो उस वजह से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे. और घरों के अंदर से क्लोज शटर से, मतलब कि क्लोज शटर मीन्स दरवाजे बंद थे, लेकिन फिर भी वहां से उनके हंसने की, बात करने की, राइट, और साउंड्स वहां से आवाजें, हंसी की गूंज वहां पे सुनाई दे रही थी. ओल्ड पापा पैनो. Now you can see in this picture, okay, this is Papa Pano. Now old Papa Pano, the village shoemaker. Now Papa Pano, बूढ़े Papa Pano जो थे वो एक शू मेकर थे, शू बनाने वाले थे, मतलब जूते बनाने वाले थे. Stepped outside his shop to take one last look around. और उन्होंने बाहर आकर, अपने शॉप से बाहर आकर, बाहर जो भी है वहां पर उन्होंने एक नजर घुमाई. The sounds of happiness, the bright lights, and the faint but delicious smells of Christmas cooking reminded him of past Christmas times. और जब उन्होंने बाहर की ओर देखा, कदम रखा और बाहर की ओर देखा तो खुशी की आवाज थी, रोशनी थी. तो वहां पर हर जगह पे जो भी पकवान बने गए थे, स्वादिष्ट ऐसे पकवान वहां पर बने गए थे क्रिसमस के लिए, कुकिंग स्नैक्स जो बनाया गया था, सो उसकी डिलीशियस ऐसी स्मेल, महक वहां पर चारों ओर थी. और इस महक ने उन्हें उनका जो पुराना पिछला जो क्रिसमस है उसकी उन्हें याद दिला दी. और जब when his wife had still been alive and his own children little, और जब उसकी जो पत्नी है, राइट, वाइफ है, वो पिछले क्रिसमस वो जीवित थी और उसके बच्चे भी उसके साथ थे. Now they had gone. लेकिन अब वो बच्चे जा चुके हैं.
His usually cheerful face, with the little laughter wrinkles behind the round steel spectacles, looked sad now. Now, पापा पैनो का जो चेहरा है, जो फेस है उसका, हमेशा ही हंसमुख चेहरा था और उसकी झुर्रियों में भी, राइट, हंसी के साथ उसकी झुर्रियां वहां पर दिखाई देती थी जब वो हंसता था, राइट, और उसका जो चश्मा था उसके पीछे से, लेकिन अभी उसका चेहरा जो है वो सैड, दुखी, उदास ऐसे दिखाई दे रहा था. But he went back indoors with a firm step, put up the shutters, and set a pot of coffee to heat on the charcoal stove. Right? So अब उसका चेहरा जो है वो उदास लग रहा था क्योंकि वो अकेला था, ना उसकी पत्नी अब जीवित थी, ना उसके बच्चे उसके साथ में थे, राइट. लेकिन वो एक निश्चित कदम के साथ, एक कंफर्म स्टेप के साथ में वो अपने घर के अंदर वापस चला गया, राइट. और उसने शटर जो है वो डाल दिया और चारकोल स्टोव पर उसने कॉफी के लिए, राइट, जो पॉट है वो वहां पर रख दिया. देन विद अ साय ही सेटल्ड इन हिज बिग आर्म चेयर. और फिर एक, राइट, अपने जो आराम कुर्सी होती है, राइट, अपनी आर्म चेयर पर वो आकर एक आह के साथ में वहां पर वो बैठ गया. Now Papa Pano did not often read, but tonight he pulled down the big old family Bible and slowly tracing the lines with one forefinger, he read again the Christmas story. हालांकि पापा पानो जो है वो अक्सर बाइबल नहीं पढ़ा करते थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी जो परिवार की जो बाइबल है, राइट, सो उसे उन्होंने निकाला, राइट, और अपना फिंगर उस पर रखते हुए उन्होंने क्रिसमस की कहानी फिर एक बार पढ़ी. He read how Mary and Joseph, tired by their journey to Bethlehem, found no room for them at the inn, so that Mary's little baby was born in the cowshed. और उन्होंने पढ़ा, बाइबल में उन्होंने पढ़ा कि मेरी और जोसेफ जो है, सो वो लॉन्ग जर्नी के कारण, राइट, वो वहां पर बेथलहम वहां पर पहुंचे थे. एक लॉन्ग जर्नी के कारण वो थके हुए थे और वहां पर आने के बाद में, बेथलहम में आने के बाद में उन्हें रहने के लिए कोई भी रूम वहां पर नहीं मिला था. सराय में कोई भी रूम वहां पर अवेलेबल खाली नहीं था, कोई जगह नहीं थी. और मेरी जो है, राइट, सो उसको बेबी होने वाला था, राइट, लेकिन उन्हें रूम ना मिलने के कारण बेबी का जन्म जो है, लिटिल बेबी जो था, राइट, जीसस, उसका जो जन्म है वो एक काउशेड में हुआ, मीन्स गौशाला में उसका जन्म हुआ. ओ डियर, exclaimed पापा पैनो. और जब उन्होंने पढ़ा कि मेरी ने अपने बच्चे को एक गौशाला में, काउ शेड में जन्म दिया और उसको कोई घर नहीं मिल पाया था रहने के लिए, राइट, डिलीवरी के लिए, सो उन्हें बुरा लगा और उन्होंने कहा ओ डियर, उन्होंने कहा, इफ ओनली दे हैड कम हियर आई वुड हैव गिवन देम माय बेड. और उन्होंने सोचा कि काश कि वो यहाँ पर आए होते तो मैं उन्हें अपना बेड देता, यहाँ पर उन्हें वेलकम करता. आई कुड हैव कवर्ड द बेबी विथ माय पैचवर्क क्विल्ट टू कीप हिम वार्म. और अगर बेबी, राइट, उसे मैं अपना बेड ऑफर करता, राइट, और उसे अपनी शॉल से, जो मेरे पास में शॉल है, सो उसे उसमें उसे उस बच्चे को उससे कवर्ड कर लेता. He read on about the wise men who had come to see the baby Jesus, bringing him splendid gifts. और उन्होंने आगे पढ़ा कि 3 wise men जो है, राइट, जो 3 बुद्धिमान पुरुष थे जो जीसस से मिलने आए थे, राइट, तो उन्होंने उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाया था. Now Papa Pano's face fell. I have no gift that I could give him, he thought sadly. और उन्होंने सोचा कि मेरे पास में तो जीसस को देने के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं है, राइट, और ये सोचकर वो दुखी हो गए. Then his face brightened. और अचानक से उन्हें कुछ याद आया और उनका चेहरा जो है वो चमक उठा. He put down the Bible, got up and stretched his long arms to the shelf high up in his little room. और उसके रूम के अंदर, सो उसने क्या किया, अपने बाइबल को रख दिया
और अपने रूम के अंदर, राइट, एक शेल्फ के अंदर कुछ रखा हुआ था उनके रूम में। सो उन्होंने अपने हाथों को बढ़ाकर उसे निकाला। He took down a small dusty box. उन्होंने एक बॉक्स निकाला and opened it. एक छोटा सा बॉक्स था, डस्टी बॉक्स, और उन्होंने उसे ओपन किया। Inside was a perfect pair of tiny leather shoes. और उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर एक शूज के पेयर थे, मीन्स छोटे बच्चे के शूज थे। पापा पैनो स्माइल्ड विथ सेटिस्फैक्शन। और उन जूतों को देख के पापा पैनो संतोष से मुस्कुराए। यस, दे वर एज गुड एज ही हैड रिमेम्बर्ड, द बेस्ट शूज ही हैड एवर मेड। और उन्होंने मन में सोचा कि ये वो जूते थे जो उन्होंने, मतलब उनके बेस्ट, सभी जूतों में जो बेस्ट जूते बने थे वो सबसे अच्छे, सबसे बढ़िया ये वही जूते थे। आई शुड गिव हिम दोज, he decided as he gently put them away and sat down again. और उन्होंने मन में सोचा कि I should give him those, और मैं उससे जीसस को ये दूंगा, ये गिफ्ट दूंगा। उन्होंने डिसाइड किया और फिर अपनी जगह पे जाकर बैठ गए। He was feeling tired now, and the further he read, the sleepier he became. अब वो टायर्ड ऐसे, थके हुए से फील कर रहे थे, और रीडिंग करते हुए आगे जो भी अध्याय था, राइट, सो वो रीड करते करते, बाइबल रीड करते करते उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें अभी नींद आ रही है। द प्रिंट बिगेन टू डांस बिफोर हिज आईज, राइट, और अब उन्हें नींद आने लगी थी, उनकी आंखें जो है वो बंद होने लगी थी रीडिंग करते हुए। सो वहां पर बाइबल में जो भी शब्द थे, जो भी वर्ड्स थे, सो वो ऐसे लग रहे थे लाइक वो डांस कर रहे हो, राइट, जो भी प्रिंट थी। जस्ट फॉर अ मिनट, और उनकी आंख लग गई। इन नो टाइम एट ऑल पापा पैनो वॉज फास्ट asleep, और उस वक्त वो नींद में चले गए, सो गए। एज ही स्लेप्ट ही ड्रीम्ड, और जब वो सो गए तो उन्होंने एक सपना देखा। ही ड्रीम दैट समवन वॉज इन हिज रूम एंड ही न्यू एट वंस एज वन does in dreams who the person was. It was Jesus. और जब वो नींद में चले गए, सो गए, तो उन्होंने एक सपना देखा, और सपने में देखा कि उनके रूम में कोई तो था, और वो पर्सन कौन था? वो जीसस था। You have been wishing that you could see me, Papa Pano, he said kindly. You have been wishing means जीसस ने कहा कि तुम विश कर रहे थे, राइट, तुम चाहते थे कि तुम मुझे देखो। Then look for me tomorrow. It will be Christmas Day and I will visit you. But look carefully, for I shall not tell you who I am. और जीसस ने कहा कि ठीक है, कल तुम मुझे जरूर देखोगे, राइट, और कल क्रिसमस का दिन है, क्रिसमस डे है, और मैं तुमसे मिलने आऊंगा, लेकिन तुम ध्यान से देखना, केयरफुली देखना, क्योंकि जब मैं आऊंगा तो मैं नहीं बताऊंगा कि मैं ही जीसस हूं, तो तुम्हें मुझे पहचानना होगा। When at last Papa Pano awoke, the bells were ringing out, and a thin light was filtering through the shutters. Bless my soul, said Papa Pano. It's Christmas Day. और जब पापा पैनो जग गए तो घंटी बज रही थी, और शटर में से उन्हें जो लाइट है वो दिखाई दे रही थी, राइट। सो उन्होंने उठते हुए कहा, ब्लेस माय सोल, मेरी आत्मा को आशीर्वाद दो, आशीष दो, पापा पैनो ने कहा। He stood up and stretched himself, for he was rather stiff. Then his face filled with happiness as he remembered his dream. और जब वो उठ गए, राइट, सो उन्होंने अपने हाथों को फैलाया, मीन्स उन्होंने वो फ्रेश होने के लिए उन्होंने अपने हाथों को स्ट्रेच किया, और उनका चेहरा जो है वो खुशी से भर गया, क्योंकि जो उन्होंने सपना देखा था, ड्रीम देखा था, वो अभी भी उन्हें याद था। This would be a very special Christmas after all,
for Jesus was coming to visit him। और ये इस साल का जो क्रिसमस है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला था क्योंकि जीसस पापा पैनो से मिलने आने वाला था। हाउ वुड ही लुक, वो कैसा दिखता होगा? वुड ही बी अ लिटिल बेबी, क्या अभी भी वो एक छोटा बच्चा होगा? एज एट दैट फर्स्ट क्रिसमस, जो फर्स्ट क्रिसमस हुआ था जब वो बेबी था तो वो मुझे मिलने आएगा तो एक बेबी के रूप में मिलने आएगा। वुड ही बी अ ग्रोन मैन, क्या वो बड़ा हो गया होगा? अ कारपेंटर और द ग्रेट किंग, एक कारपेंटर होगा या किंग होगा? दैट ही इज गॉड सन, राइट, गॉड का जो पुत्र है, परमेश्वर का, गॉड का जो पुत्र के रूप में क्या वो मुझे मिलने आएगा? ही मस्ट वॉच केयरफुली द होल डे थ्रू so that he recognize him however he come। now he must watch carefully, तो इसके लिए जीसस को पहचानने के लिए पूरे दिन जिस किसी से वो मिलेगा उसे केयरफुली उसे देखना था ताकि वो उसे पहचान सके। Papa Pano put on a special pot of coffee for his Christmas breakfast, took down the shutters and looked out of the window। Now Papa Pano ने क्या किया? स्पेशल मतलब आज स्पेशल डे था, क्रिसमस डे था, तो उन्होंने अपनी स्पेशल कॉफी बनाने रखी ब्रेकफास्ट के लिए। एंड टुक डाउन दी शटर्स, राइट, शटर्स को नीचे कर दिया और खिड़की से वो बाहर देखने लगे। The street was deserted, no one was stirring it। और जो स्ट्रीट थी, जो भी उन्होंने खिड़की से देखा, जो भी गली थी वो सुनसान थी, कोई भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था, अभी तक कोई हलचल नहीं थी। No one except the road sweeper, और वहां पर रोड पर कोई भी लोग नहीं थे इसके अलावा कि एक वहां पर एक स्वीपर ही था। रोड पर स्वीपर के अलावा वहां पर कोई नहीं था। He looked as miserable and dirty as ever, and well he might, however, wanted to work on Christmas Day। And in the raw, cold and bitter freezing mist of such morning, right? So पापा पैनो ने सोचा कि he looked as miserable, मतलब स्वीपर जो रोड पर राइट झाड़ू लगाने का काम करता है, सो उसकी वजह से वो मिजरेबल डर्टी ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि वो हमेशा ही होता है। लेकिन फिर भी क्रिसमस के दिन जबकि हॉलीडेज होते हैं राइट, लेकिन वो काम कर रहा था इतने ठंड में, राइट, इतने ज्यादा कोल्ड में, ठंड में भी वो सड़क पर आकर काम कर रहा था। पापा पैनो ओपन द शॉप डोर, और पापा पैनो ने अपने शॉप का डोर ओपन किया, लेटिंग इन अ थिन स्ट्रीम ऑफ कोल्ड एयर। और जैसे उन्होंने डोर ओपन किया तो अंदर एक ठंडी सी हवा आ गई। कम इन, ही शाउटेड अक्रॉस द स्ट्रीट cheerily, राइट। सो उन्होंने उसे आवाज लगाकर उसे कहा कि तुम अंदर आ जाओ, कम इन एंड हैव सम हॉट कॉफी टू कीप आउट दी कोल्ड। और उन्होंने उसे कॉफी ऑफर की, उन्होंने कहा कि तुम अंदर आ जाओ और एक गरम सी ऐसे कॉफी तुम पी सकते हो, राइट, अपनी ठंड निकालने के लिए। The sweeper looked up, scarcely able to believe his ears। और स्वीपर ने ऊपर की तरफ देखा, उनकी ओर देखा, ये सोचते हो कि क्या पापा पैनो उसी से बात कर रहे हैं। He was only too glad to put down his broom and come into the warm room। और उसे बड़ी खुशी हुई, राइट, उसे पहले तो लगा कि उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने देखा, राइट, उसने कंफर्म किया कि क्या पापा पैनो उसी से बात कर रहे हैं, उसे ही बुला रहे हैं। सो उन्होंने अपना जो ब्रूम है, अपना जो झाड़ू है वहां पर रख दिया और उस गरम रूम में वो चले गए। His old clothes streamed gently in the heat of the stove। His old clothes streamed gently in the heat of the stove, and he clasped both red hands round the comforting warm mug as he drank। और जब उसे कॉफी का मग मिला तो दोनों हाथों से उसने उसे पकड़ लिया, राइट, ताकि उसके हाथ गरम
हो सके। Papa Pano watched him with satisfaction, but every now and then his eyes strayed to the window. It would never do to miss his special visitor. Now पापा पैनो ने उसे बड़ी संतुष्टि के साथ में उस स्वीपर को देखा, लेकिन बार बार उनकी जो आंखें वो खिड़की के बाहर भटक रही थी, राइट। इट वुड नेवर डू टू मिस हिज स्पेशल विजिटर, और जो आज क्रिसमस डे पर उन्हें जो स्पेशल विजिटर, राइट, मिलने आने वाला था, सो उसे वो मिस नहीं करना चाहते थे। एक्सपेक्टिंग समवन, द स्वीपर आस्क्ड एट लास्ट, और जब स्वीपर ने देखा कि बार बार उनकी आंखें जो विंडो की ओर देख रही है, सो उस स्वीपर ने उन्हें पूछ लिया, क्या आप किसी की राह देख रहे हैं? सो पापा पैनो टोल्ड हिम अबाउट हिज ड्रीम, तो पापा पैनो ने अपने ड्रीम के बारे में उन्हें बताया। वेल आई होप ही कम्स, द स्वीपर सेड, और स्वीपर ने कहा कि मुझे लगता है, मुझे आशा है कि वो जरूर आएगा। You have given me a bit of Christmas cheer I never expected to have. I'd say you deserve to have your dream come true. And he actually smiled. और स्वीपर ने कहा कि आज के क्रिसमस के दिन आपने मुझे कॉपी दी जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, राइट। क्रिसमस ट्रीट आपने दी, लेकिन ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मैं यही कहूंगा कि आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं। और वो हंस पड़ा। When he had gone, Papa Pano put on cabbage soup for his dinner. और जब वो चला गया तो पापा पैनो ने अपने लिए कैबेज सूप जो है डिनर के लिए बनाने के लिए शुरू किया। Then went to the door again, और उन्होंने वो सूप बनाने के लिए रख दिया, और फिर एक बार वो डोर की तरफ चले गए। स्कैनिंग द स्ट्रीट, और स्ट्रीट की ओर वो देखने लगे। He saw no one, और उन्होंने देखा कि वहां पर रास्ते पर कोई नहीं था, but he was mistaken. Someone was coming, लेकिन उन्होंने ये सोचकर गलती कर दी थी, क्योंकि वहां पर कोई तो भी आ रहा था, कोई आ रहा था। The girl walked so slowly and quietly, hugging the walls of shops and houses that it was a while before he noticed her. और जब उन्होंने देखा कि एक गर्ल, एक लड़की चुपचाप सी, राइट, इस प्रकार से चल रही थी दीवारों को और दुकानों को, राइट, जैसे कि गले लगाते हुए, घिसटते हुए वो ऐसे चल रही थी, और उन्होंने ये नोटिस किया। She looked very tired, और उन्होंने देखा कि वो काफी थकी हुई ऐसी दिखाई दे रही है। एंड शी वॉज कैरिंग समथिंग, और उसके हाथ में कुछ तो था। एज शी ड्रीव नियरर ही कुड सी दैट इट वॉज अ बेबी, और जब वो नजदीक आ गई तो उन्होंने देखा कि उसके हाथ में एक बेबी था, एक छोटा बच्चा था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, wrapped in a thin shawl, एक पतले से ऐसे शॉल में वो लपेटा गया था। There was such sadness in her face, और उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा उदास, दुखी ऐसे दिखाई दे रही थी। And in the pinched little face of the baby, that Papa Pano's heart went out to them. Won't you come in? He called, stepping outside to meet them. You both need a warm by the fire and a rest. और जब पापा पैनो ने उस लड़की की हालत को देखा, उसके हाथ में बच्चे को देखा, सो उन्हें उस पर दया आ गई। पापा पैनो's heart went out to them, राइट। उनके हृदय में बहुत ही बुरा लगा, इतने ठंड में ये लड़की उदासी के मारे वहां पर आगे कहीं पर चल रही थी। सो उन्होंने उसे कहा कि वोंट यू कम इन, क्या तुम अंदर आना चाहोगी? यू बोथ नीड अ वार्म बाय द फायर, राइट, एंड रेस्ट। मुझे लगता है कि तुम दोनों को ही, राइट, गर्माहट की, राइट, और आराम करने की जरूरत है। उन्होंने उसे अंदर बुलाया।
The young mother let him shepherd her indoors and to the comfort of the armchair. She gave a big sigh of relief. Now उस यंग मदर ने राइट, वो जो युवा माँ थी, जो लड़की थी राइट, सो उसने पापा पैनो को उसे अंदर आने के लिए राइट उन्हें अलाउ किया राइट, और अंदर आने के बाद में उसने राहत की सांस ली. I will warm some milk for the baby, पापा पैनो said. पापा पैनो ने कहा कि बच्चे के लिए मैं कुछ दूध गरम करता हूँ. I have had children of my own, I can feed her for you. Right? So उसने कहा कि मेरे भी बच्चे थे राइट, सो मैं उसे फीड कर सकता हूँ, खिला सकता हूँ. He took the milk from the stove and carefully fed the baby from a spoon, warming her tiny feet by the stove at the same time. Now उन्होंने क्या किया, बेबी को जो है जहाँ पर स्टोव था राइट, जहाँ पर गर्मी थी, तो उन्होंने केयरफुली वहाँ पर बेबी को स्पून से, चम्मच से उसे दूध पिलाया, और उसके जो पैर थे, छोटे पैर थे राइट, उसी टाइमिंग में उन्होंने उसे भी गर्म होने के लिए वहां पर नजदीक ले गए. She needs shoes, the cobbler said. और कॉबलर मतलब जो पापा पैनो थे वो शू मेकर थे राइट, जूते बनाने वाले थे, कॉबलर थे. सो उन्होंने कहा कि इस बच्ची को जूतों की, शूज की जरूरत है. But the girl replied, I can't offer shoes. I have got no husband to bring home money. I am on my way to the next village to get work. और उसने, उस युवा माँ ने राइट, उस गर्ल ने रिप्लाई किया, उसने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे शूज ले सकूं, क्योंकि मेरा कोई पति है नहीं जो पैसे कमा कर लाए राइट, और काम ढूंढने के लिए ही मैं गांव के लिए, अगले गांव के लिए रास्ते पर ही जा रही थी. A sudden thought flashed through Papa Pano's mind. Now, पापा पैनो ने ये सुना कि वो लड़की क्या कह रही थी, कि वो काम ढूंढने के लिए गांव, अगले जो नेक्स्ट गांव था राइट, वहां पर काम ढूंढने के लिए जा रही थी, और उसके पास में पैसे नहीं है जूते खरीदने के लिए. सो पापा पैनो के दिमाग में एक विचार आया. He remembered the little shoes. और उन्हें याद आया वो जो लिटिल शूज उन्होंने बॉक्स में से निकाले थे जीसस को गिफ्ट देने के लिए. सो उन्हें वो याद आए. He had looked at last night right, पिछली रात्रि उन्होंने वो शूज निकाले थे राइट, but he had been keeping those for Jesus. लेकिन उसने वो जूते जीसस को देने के लिए रखे हुए थे. He looked again at the cold little feet and made up his mind. और ये सोचते हुए पापा पैनो ने उस छोटी बच्ची के, उस बेबी के जो पैर है, जो ठंड के मारे राइट, वो बच्ची वहां पर ठंड के मारे वहां पर तड़प रही थी, उसकी कोई जूते नहीं थे राइट. सो उन्होंने उसके, उस बेबी के उस पैरों को देख लिया, और उन्होंने अपना माइंड, अपना विचार कर लिया था. Try these on her, he said. Now, पापा पैनो जूते लेकर आए और उसकी माँ को कहा कि ये उसे ट्राई करो, इसे पहनाओ. Handing the baby and the shoes to the mother. और उन्होंने उस माँ के हाथ में वो शूज और बेबी को सौंप दिया और उसे कहा कि ये उसे पहनाओ. The beautiful little shoes were a perfect fit. और जो शूज थे वो उसे अच्छे से, परफेक्टली उसके पैरों में वो फिट हो गए थे. The girl smiled happily and the baby gurgled with pleasure. जो युवा माँ थी राइट, सो अपने बच्चे को शूज पहनाकर, और उसने देखा कि ये परफेक्टली उसे फिट हो गए हैं, इससे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और बच्चा भी खुश था. You have been so kind to us, the girl said. आप हमारे प्रति कितने बहुत ही ज्यादा
दयालु रहे, गर्ल ने कहा। When she got up with her baby to go, May all your Christmas wishes come true। और जाते हुए इस लड़की ने कहा कि आपके जो भी क्रिसमस विशेष है, राइट, जो भी है वो आपके पूरे हो। मैं आपको शुभकामना देती हूँ। But Papa Pano was beginning to wonder if his very special Christmas wish would come true. Perhaps he had missed his visitor। और पापा पैनो जो है वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित करने लगे थे कि क्या सच में उनकी विश पूरी होगी, क्रिसमस विश, राइट। हे, क्या उन्होंने उसे वो पहचानने में वो चूक गए थे, राइट। He looked anxiously up and down the street। और वो स्ट्रीट पर, राइट, गली की जो रास्ता था उस पर वो वहां पर देख रहे थे, खोज रहे थे। There were plenty of people about, but they were all faces that he recognized। लेकिन गलियों में जो भी लोग उन्हें, जो भी फेसेस उन्हें दिखाई दे रहे थे, राइट, सो पापा पैनो ने वो पहले से ही देखे थे, वो उन्हें पहचानते थे। There were neighbors going to call on their families। They nodded and smiled and wished him happy Christmas। और जो भी नेबर्स थे वो अपने फैमिलीज को बुला रहे थे और सभी जगह पे लोग मुस्कुराहट के साथ में उन्हें हैप्पी क्रिसमस कह रहे थे, विश कर रहे थे। और बेगर्स एंड पापा पैनो hurried into us to fetch them hot soup and generous hunk of bread। और पापा पैनो जो है रास्ते पर जो भी उन्हें बेगर्स दिखाई दे रहे थे, भिखारी दिखाई दे रहे थे जो कि नीड में थे, सो उन्हें वो घर के अंदर वहां पर उन्हें सूप दे रहे थे, ब्रेड दे रहे थे खाने के लिए। हरिंग आउट अगेन इन केस ही मिस द इम्पोर्टेंट स्ट्रेंजर। और फिर बाहर जाकर वो देखते थे कि क्या उनका विजिटर उन्हें मिलने आया है। All too soon the winter dusk fell when Papa Pano next went to the door and strained his eyes. He could no longer make out the passers-by. Most were home indoors by now anyway. He walked slowly back into his room. At last, put up the shutters and sat down wearily in his armchair. So it had been just a dream after all. Jesus had not come. Then all at once he knew that he was no longer alone in the room। अब जो लोग हैं दिन भर उन्होंने उसे खोजा था लोगों के बीच में, क्या वही जीसस तो नहीं, राइट। सो धीरे धीरे लोग अपने घरों के अंदर जा चुके थे और उन्होंने शटर्स बंद कर लिए थे। सो अब पापा पैनो ने देखा कि लोग अपने अपने घरों में जा चुके और वो स्ट्रेंजर, वो विजिटर तो आया ही नहीं है। सो थकान के मारे वो अपने रूम के अंदर चले गए, राइट, और उन्होंने अपने आर्म चेयर पर, वेरीली मीन्स राइट, थकान के साथ में अपने आर्म चेयर पर बैठ गए और उन्होंने मन में सोचा कि आफ्टर ऑल ये जस्ट एक ड्रीम ही था, ये सपना ही था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी क्योंकि जीसस नहीं आया, उन्हें मिलने आज जीसस नहीं आया था। और जब वो ऐसा सोच ही रहे थे तो उन्होंने फील किया कि वो रूम में अकेले नहीं है, वहां पर कोई और भी था। This was not a dream, for he was wide awake. At first he seemed to see before his eyes the long stream of people who had come to him that day। लेकिन उन्होंने सोचा ये उनके लिए कोई एक सपना ही नहीं था क्योंकि वो जाग रहे थे, उन्हें पता था कि वो सपना नहीं था क्योंकि वो जागे हुए थे। और उन्होंने उनके आंखों के सामने वो हर एक नजारा, वो हर एक लोग, हर एक चेहरा उनके आंखों के सामने घूमने लगा था जो जो उस क्रिसमस डे पे उनसे मिला था। He saw again the old road sweeper। और उन्होंने फिर एक बार देखा जो स्वीपर, मॉर्निंग में उन्होंने उसे कॉफी पिलाई थी, उसे घर के अंदर वेलकम किया था। सो उसके आंखों के सामने वो स्वीपर आ गया। देन यंग मदर, जो युवा माँ थी अपने बच्चे के साथ में, एंड हर बेबी एंड बेगर्स ही हैड फेड। और जो बेगर्स थे, भिखारी थे, राइट, जिन्हें उसने खाना खिलाया था। एज दे पास्ड ईच विस्पर्ड। और
हर एक, राइट, वो स्वीपर, यंग मदर, देन बेगर्स, वो हर कोई वो एक ही बात बोल रहे थे, एक ही आवाज में। और वो क्या बोल रहे थे? डिडंट यू सी मी पापा पैनो? क्या तुमने मुझे नहीं देखा पापा पैनो? Who are you? He called out, bewildered. और उसने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कंफ्यूजन में पूछा। Then another voice answered him. और दूसरी एक आवाज ने उसे उत्तर दिया। It was the voice from his dream, the voice of Jesus. और उस सपने में जो आवाज थी जीसस की, और वही आवाज उसे बता रही थी, I was hungry and you fed me. जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, he said. I was naked and you clothed me. और राइट, जब मेरे पास में जूते नहीं थे तो तुमने मुझे जूते पहनाए। I was cold and you warmed me. और जब मैं ठंड में था तो तुमने मुझे गर्मी दी, राइट। I came to you today in every one of those you helped and welcomed. और I came to you मतलब मैं आज तुमसे मिलने आया था। जिन जिन लोगों को तुमने आज मदद की और अपने घर में वेलकम किया, सो उन लोगों में से मैं तुम्हें मिलने आया था। Then all was quiet and still. Only the sound of big clock ticking could be heard. और वहां पर पूरा सन्नाटा था, पूरी शांति थी, राइट, जब जीसस ने ये कहा कि मैं तुमसे मिलने आया था। और सिर्फ जो घर में, उस रूम में जो क्लॉक था, उसकी आवाज वहां पर टिकलिंग आवाज सुनाई दे रही थी। A great peace and happiness seemed to fill the room. और उस रूम के अंदर, पापा पैनो के अंदर, राइट, जो शांति और खुशी से वो रूम पूरा भर गया था। Overflowing पापा पैनो's heart. और उसके हृदय के अंदर उस खुशी को उसने भर दिया था। Until he wanted to burst out singing and laughing and dancing with joy. और खुशी के नारे, उसके हृदय के अंदर इतनी खुशी की लहर दौड़ उठी थी कि उसने, राइट, until he wanted to burst out singing, laughing and dancing. और उस खुशी के मारे वो गीत गाने लगा, हंसने लगा, डांस करने लगा। So he did come after all, was all that he said. और पापा पैनो ने कहा तो वो, यानी कि जीसस आज मुझे मिलने आया था। लियो टॉल्स्टॉय। Let's see the hard word meanings. First word is scurried. It means to run with quick light steps. Second word is muffled. It means sound which is covered up. Next word is delicious, means tasty. Next word quilt. It means a bed covering consisting of two layers stitched together with insulation between. Fifth word is splendid. It means magnificent. Sixth word is charcoal. It means impure carbon coal. Seventh word is stove. It means a device for heating food. Eighth word is miserable. It means sad or poor. Next word scanning. It means to examine part by part. 10th word is wrapped. It means covered in thin material. 11th number word is shepherd. Here it means to guide. Next word is steering. It means action or movement. Next word gurgle. It means to make a bubbling sound. 14th number word anxiously. It means in a hurried manner. Next word hum. It means a large piece of something. Next word is beveled. It means confused. Next word pinch. It means very thin, pale from cold or hunger. And last word is clasped. It means to grab tightly. So dear students, today we learn a 4.6 number lesson, Papa Pano's Special Christmas. In that at last he understood that Jesus has come to him in the form of the needy people he had helped. He was at peace and his heart danced with joy. I hope you all understood this lesson. क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है,
सो आप चैनल प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Also press the bell icon so you'll get the notification of the new video. This is all for today's lecture. Thank you.